Good morning, everyone. I welcome you all on behalf of Sky Foundation, EduSTEM Initiative Global, the three collaborating WIPNET clubs, namely Women Led Science WLS WIPNET Club, Sky Amateur Astronomers WIPNET Club, and the Ignited Minds WIPNET Club, on this special session of cybersecurity awareness named Protection of Privacy and Data on Social and Financial Platforms. I am very happy to inform you that the chief guest of the the speaker of the day, Mr. Bharat Bhusalji, Director Civintech Solutions, is already along with us. I welcome guest of honor on behalf of Sky Foundation, EduSTEM Initiative, and all the collaborative Swipnet Club. Round of welcome to all the esteemed guests and participants who are here to encourage us and to have a shared knowledge of cybersecurity awareness. Computers are an essential part of our lives nowadays, and we can't imagine our lives without the internet and computers. Even our smartphone are also categorized in microcomputers. As it said, every coin has two faces, and so same with the cyber world. Since the beginning of the internet, the vulnerabilities exist with it. Hacking of systems is a common term nowadays. As our reach to the internet is increasing day by day, more and more crime related to it is also coming in light. But many times, only the attackers aren't responsible for our frauds. Our lack of knowledge also leads us to cyber frauds. Now, not wasting much time, I transfer the baton of today's event to my co-host and coordinator of the Women Led Science Club, Ms. Sweta Srivastava, to carry the event forward with the introduction of our today's speaker. Thank you and over to you, Sweta ji. Welcome everyone. Thank you for joining us for today's webinar. I'm your co-host Shweta Srivastava, President of Women Led Science Club. As you all know, today we have two sessions, now and in the evening. Shubhan already introduced you with the topic. Now, without further ado, let me introduce the speaker of the day, Mr. Bharat Bhushal. He is a cybersecurity expert awarded with C.V. Raman Appreciated Award 2019 from Raman Science and Technology Foundation, Gujarat. He has delivered lectures on cybersecurity awareness multiple times at various places. He presented his paper in Frontier Area of Research titled Current Issues and Challenges of Cybersecurity Management during IISF 2019 held at Kolkata. He took part in IISF 2018 held at Lucknow as a filmmaker, team leader in event Guinness World Record 2018 on event of highest first aid class organized by Ministry of Science and Technology, Government of India. He was also the winner of first inter-university science film competition with third position for the film Light the Scintillating Beauty, organized by Council of Science and Technology, Uttar Pradesh. He was recognized by UPCST and Vigyan Prasad for National Science Filmmaking Workshop 2018 as a team leader and actor making the film Gaming a War Zone. Also recognized as a team leader and director making film Micro Message by Vigyan Prasad and CSIR NBRI for National Workshop on Science Communication and Filmmaking 2019. He also conducted Scientific Short Filmmaking Workshop as trainer at Bagpat, Uttar Pradesh, organized by District Science Club, UPCST, and Science Innovation and Humanist Society WIPNET Club. With this, I would like to invite Mr. Bhusal for the talk. We will turn the time over to you, sir. Thank you. Hello, good morning, everyone. Thank you, Sweta. Thank you, Subhan, and thank you, Amtan Subhaj, or many more my legends friends, S.N. Sukumar sir, Prakash bhai from Nepal, and many more my classmate, Mr. Himanshu, and many more. मोस्ट वेलकम और वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपका सुबह, आज संडे की सुबह है, तो थोड़ा सा आज के डेट में आप और हम यहाँ मुलाकात कर रहे हैं तो डिवाइस के थ्रू हो रहे हैं, कनेक्टिविटी है, कितना इजी है। लेकिन अगर यही 1990s में हम जाते हैं तो ये कितना कठिन था।
हम तब लेटर ही लिखा करते थे, किसी के लैंडलाइन फोन का इंतजार करते थे, लेकिन आज हम कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इतना इजी वे में मेरा मेन फोकस है कि आज के डेट में हम लोग इतने डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो इनको कैसे हम बेस्ट यूटिलाइज करें और आपकी प्राइवेसी भी बनी रहे। फर्स्ट मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्काई फाउंडेशन, एडुस्टीम इनिशिएटिव ग्लोबल, विज्ञान प्रसार एंड इग्नाइटेड माइंड्स विपनेट क्लब, स्काई एक विपनेट क्लब, वुमेन्स लीड साइंस विपनेट क्लब। आप सभी ने मुझे इस प्रोग्राम के लिए ये जब वक्ता के रूप में आप लोगों ने स्वागत किया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मेरी जो पॉइंट है, आज के डेट में हम आपके परिवार, आपके चाइल्ड्स, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, सभी के लिए ये ऐसी टॉपिक है कि जिसको अवेयर रहना बहुत जरूरी है। तो मैं अपने गुरुजनों को भी थैंक यू करना चाहूँगा। हो सके उन लोग भी मैं सुन रहे हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म में जो नॉलेज दिया, जो आज मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले आता हूँ आप लोगों के पास। थोड़ा सा मैं एक क्लू आप लोगों को देना चाहूँगा, या आप लोगों से एक जो पजल्स में पूछ रहा हूँ। आज के डेट में आप लोग क्या करते हैं, किसी का भी फोटो उठा लेते हैं, उसमें कुछ एडिटिंग करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और सेंड कर देते हैं। क्या आप हमारे इंडिया के आईपीसी के अंतर्गत या आईटी एक्ट के अंतर्गत कौन सी क्राइम कर रहे हैं, ये कमेंट करिएगा। तो मैं जो भी महानुभाव हैं उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा। और उसी तरह जैसे डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेशन करते हैं, ये लोग को मैनिपुलेट करते हैं, उसको एडिट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, तो ये भी एज ए क्राइम होती है। अब इसमें कितना क्राइम होती है और कितना आपको पनिशमेंट हो सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का न लेते हुए मैं पॉइंट अपने प्रेजेंटेशन में आना चाहूँगा। और मेरा जो विषय है ये सोशल एंड बैंकिंग सेक्टर में आप फाइनेंशियल या साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं। पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको बेसिकली जानना होगा कि हम लोग कंप्यूटर इरा में कहाँ से आए, कहाँ से कंप्यूटर शुरू हुआ, कहाँ से इंटरनेट आई। इंटरनेट आने से पहले इसका नाम क्या था, थोड़ा गेस करके बैठिए सर, तो मैं थोड़ा आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग होगा। तो चल मैं अपने पॉइंट पे आगे बढ़ता हूँ। बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटराइजेशन। In the 1937, first computer Mark I is completed. In early days, it is only used for mathematical calculations. याद होगा आप लोगों को, आपके क्लास टाइम्स, स्कूल्स टाइम्स में हमारे सर गुरुजी लोग, सर लोग कैलकुलेटर लेते थे। हम लोग टाइम जब मिले हम लोग ढूंढते थे कि टाइम कब मिलेगा कि हम लोग छू ले एक बार, ये कैसे कैलकुलेट करता है और इतनी जल्दी कैसे आपको रिजल्ट्स देता है। हम लोग इसमें एक्साइटमेंट रहते थे। सोचिए, जब मार्क I कंप्यूटर इस्टेब्लिश किया गया 1937, तब से ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हमने कंप्यूटर्स यूज किया। भले ही वो एक छोटा सा डिवाइस है कैलकुलेटर, लेकिन वो एक तरह से कंप्यूटर डिवाइस है। अब आते हैं हम कि इन इंडिया डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर स्टार्ट इन द 1955। इंडिया में इसके बारे में रिसर्च और डेवलप करने का 1955 से स्टार्ट हुआ, बट 1984 it came in formal use after the PM of India स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पहल से ही आज आगे बढ़ा और हम लोग आज इस कंप्यूटराइज के यूज में डिजिटल प्लेटफॉर्म में आए हुए हैं। इन द 1988 इंडिया डेवलप्ड इट्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 10,000। इसके साथ आप लोगों को पता होगा वर्ल्ड में 5th कंट्री ऐसे थे जिनके पास इस तरह के कंप्यूटर्स थे जिसमें सुपर पावर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तभी से इंडिया आईटी टेक्नोलॉजी में सुपर पावर कहने लगा। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इन हिंदी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द 15 सितंबर 1997 इन इंडिया। आफ्टर दैट द डेवलपमेंट
of computer in regional languages started in 1998 under project भारत भाषा, जो हमारे रीजनल लैंग्वेज थी, इन लोगों को कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं सिस्टम में, इस तरह से भाषाओं को, प्रोग्रामिंग को डेवलप किया गया। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, और हम लोग इंटरेस्टिंग, हम लोगों ने पहले कंप्यूटर्स को देखा इंस्टीट्यूशनल होते थे, पर्सनल कंप्यूटर वेरी कॉस्टली होते थे। तो उसके बाद जो सिस्टम है, यानी कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कब से स्टार्ट हुआ? इंटरनेट इज द कंप्यूटराइज साइंटिफिक अचीवमेंट। ये एक तरह से साइंटिफिक अचीवमेंट है आज के डेट में। अगर आप किसी भी सेक्टर को उठाइए, विदाउट कंप्यूटर वहां पे हम क्या कर सकते थे, आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट कैन, लेकिन जब Bharat Bhaiya, we are actually losing your voice somewhere down the line. Kindly check your connection. That is since the beginning of the slide. Okay, so sorry. Internet is the computerized scientific achievement. The development of internet can be classified in the four stages. First, in 1960s, Paul Baron of R&D Rand Corporations conceived the interconnected network of computers throughout the United States. इन्होंने पहली बार, पाउल बैरोन है, रैंड कॉर्पोरेशन में ये काम करते थे, तो उनकी 1960 में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट के अंदर नेटवर्क से इस्टेब्लिशमेंट किया, यानी कि जो कंप्यूटर्स हैं एक आपस में उन्होंने नेटवर्क किया। इन 1962 अमेरिकन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA स्टार्ट रिसर्च ऑन ARPANET। अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेट का पहले का नाम क्या था, आप लोगों को अब आंसर मिल चुकी है, ARPANET। इंटरनेट का इनिशियल नेम ARPANET था। In the year 1969, ARPANET started its operations when the networks created by ARPA connected the computers of Stanford Research Institutes and University of California, Los Angeles at 10:30 p.m. on October 1969. By December 1969, a 4-node network was connected by adding the University of Utah and the University of California, Santa Barbara. अभी मैं फिर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये जो इंटरनेट में फ्रॉडलेंट चालू हुआ, जब कंप्यूटर एक आपस में जुड़ने लगे तब से डेटा चोरी होने लगा। उस टाइम डेटा में, कंप्यूटर्स में तो ग्लोबली नेट नहीं था, तो जो एक आपस में जो एम्प्लॉय होते थे, जैसे एक होता है ना प्राइवेट, आपस में ही एक कंपटीशन, उसकी वजह से एक दूसरे के प्रोजेक्ट को भी इन लोग लीक आउट करते थे। तो यहाँ से इंटरनेट में एक तरह से आप क्राइम स्टार्ट हो गया था। सो मैं अभी इसमें और थोड़ा सा लेटर में आपको फोकस कर रहा हूँ, फिर मैं कंटिन्यूस होता अपने presentation में। In the second stage in 1971, 23 computers of American universities are connected through the ARPANET. In 1973, ARPANET grown further when transatlantic network is established by connecting University College of London and Royal Radar Institute of Norway. यानी कि पहली बार हम समुद्री सीमाओं को भी पार कर गए थे, जो USA, लंदन और नॉर्वे के बीच में कर पाए। Third stage begins when ARPANET is renamed to Internet. Domain name server is developed in the year 1984 and Internet is called cyberspace. जो साइबर स्पेस वर्ड है, यानी कि 1994 में एग्जिस्ट करने लगा, और जो ARPANET था वो 1994 में इंटरनेट में कन्वर्ट हो गया। ये कभी भी आपको जनरल नॉलेज के लिए भी हो सके, कभी पूछा जाए, आप लोग अपने चाइल्ड्स को भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, या अपने
कलीग्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं उन लोग कर सकते हैं कि इंटरनेट का प्रीवियस नेम्स क्या था, यानी कि ARPANET। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। ARPANET इज द इंडेड इन 1990 एंड द इंटरनेट एग्जिस्ट एज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जब ARPANET एंड होगा 1990 में, तो फिर इंटरनेट एग्जिस्ट एज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्यों है कि यहाँ पे तब इंटरनेट डेवलप हो चुका था, एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके थे, एक दूसरे इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज, ई कॉमर्स स्टार्ट हो चुका था, तो ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हो गया। एट दिस टाइम्स द नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज अराउंड 3 लाख। यानी कि उस टाइम जो 1990 में वर्ल्ड में लगभग 3 लाख कंप्यूटर इन लोग एक दूसरे में कनेक्ट हो चुके थे। इन फोर्थ स्टेज ऑडियो एंड वीडियो फॉर्म्स आर मेड पॉसिबल ऑन इंटरनेट। ये सबसे बड़ा इन्वेंशन था, समझ लीजिए कि इंटरनेट में हम लोग ऑडियो और वीडियो में आने लगे, जिससे हमारी जो विजुअलाइजेशन है, पिक्चर्स हैं, ऑडियो है, हम लोग सेव करने लगे। इसी की इरा था जब हमारे जो कैसेट्स हैं ये धीरे धीरे आपके VCR के थ्रू CD कॉम्पैक्ट डिस्क में जाने लगे, फिर कॉम्पैक्ट डिस्क के थ्रू लेटर ऑन हम मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव में हम लोग स्टोर करने लगे। यानी कि ये फोर्थ स्टेज है, सबसे रेवोल्यूशनरी था, जहां पे ऑडियो और वीडियो फॉर्म होने लगे इंटरनेट में। और इन द फोर्थ स्टेज ऑडियो एंड वीडियो फॉर्म्स आर मेड पॉसिबल ऑन इंटरनेट। एडवर्टाइजिंग ओवर इंटरनेट स्टार्टेड इन 1994। यानी कि इंटरनेट में जैसे आज के डेट में जो सर्च इंजन बहुत सारे वहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत सारी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट चालू होता है, तो ये स्टार्ट कब हुआ था? 1994 में। इन द ईयर 1996 मोर देन 150 कंट्रीज आर connected with the internet. Now all world are connected in internet. The first publicly available internet service in India. अब ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया में जो फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट हुआ कब हुआ? was launched by the state owned विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL on 15 अगस्त 1995। यानी कि इंडिया में जो सबसे पहले विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इंटरनेट लाके आई, जिसको VSNL बोलते हैं, BSNL नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो VSNL है उसका एक सब्सिडरी है। इन इंडिया इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी NIC इज एस्टैब्लिश्ड इन 1998। जब इंडिया में थोड़ा कंप्यूटर्स होने लगे तो नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई 1998 में। अब आते हैं नेक्स्ट रेवोल्यूशन की तरफ। पहले जो इंटरनेट थे हम लोग सिर्फ कंप्यूटर्स में चलाते थे, तो फिर अब आने लगा मोबाइल। अब ये मोबाइल में जब 2G आने लगे, नेटवर्क जो 2G हुआ, ठीक है, इसके नेगेटिव पॉइंट इंडिया में बहुत हुआ, लेकिन हम इसका पॉजिटिव में जाएंगे। द फर्स्ट वायरलेस इंटरनेट एक्सेस बिकम अवेलेबल इन 1991 इज पार्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन 2G ऑफ द मोबाइल फोन्स टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। हाइयर स्पीड बिकम अवेलेबल इन 2001 एंड 2006 एज अ पार्ट of third and fourth generations network ISPs offering broadband services in India as of the 31st of December 2017। यानी कि 204 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे आज के डेट में बहुत सारे जैसे मोबाइल कंपनियां हैं, फिर प्राइवेट और भी कंपनियां हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, हम नाम लेना नहीं चाह रहे हैं, आप लोगों का आइडिया है इसके बारे में, ठीक है ना। और सरप्राइजिंग, अब हम जो पॉइंट पे आते हैं कि हमने बोला था कि आप लोगों को सोशल्स और हम बैंकिंग में बात करेंगे, तो इतनी देर तो हो गई कि आप स्टार्टिंग कहाँ होगा, कंप्यूटर्स कहाँ से आए, इंटरनेट कैसे आया, हुआ, और ये लेमन पीपल यानी ग्राउंड लेवल पे कैसे पहुंचा, और बैंकिंग भी, मोबाइल बैंकिंग इन इंडिया। sorry, some disturbance in the internet. In 2008, ICICI Bank was the first bank to launch mobile banking in India.
इंडिया में पहली बार जो मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट हुआ है 2008 में आईसीआईसीआई बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, के थ्रू हुआ है। अब आते हैं कि इंपोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। आज के डेट में इंटरनेट हो गया, बैंक में आ गए, मोबाइल में भी आ गया, हम वीडियो ऑडियो भी शेयर करने लगे, पर्सनल डेटा भी शेयर करने लगे। तो इसका इंपोर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी में, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इंपोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, द इंटरनेट अलाउज एन अटैकर्स टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर ऑन द प्लैनेट। यानी कि जो अटैकर्स होते हैं वो आपको दिखते नहीं है, वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे हैं, उनके पास सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन है, बाकी नेटवर्क्स है, वहां पे वो बैठ कर अपने प्रोग्राम उन लोग या जो वायरस से अटैक की एक्टिविटी कर सकते हैं। यानी द इंटरनेट अलाउज एन अटैकर टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर on the planet. Risk caused by poor security knowledge and practice. Identity theft. आइडेंटिटी थेफ्ट आज के डेट में, जैसे आपके पास आधार कार्ड है, किसी और के पास मिल जाता है आधार कार्ड, वो जाता है आधार लेके, उसको मोबाइल फोन मिल जाता है, मोबाइल फोन से वो क्राइम करता है। एक तरह से ये आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहे हैं। फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें फेस आपके फेस को मैनिपुलेट कर देते हैं, और सिक्योरिटी ब्रीच करने के लिए हो सके मास्क बना के भी मैनिपुलेट कर दें। मॉनिटरी थेफ्ट, यानी कि सबका एक उद्देश्य होता है कि आर्थिक, यानी कि अर्थ पैसा कमाने के लिए, तो उसमें मॉनिटरिंग थेफ्ट होता है। जैसे रैमसवेयर अटैक हुआ तो उन लोगों ने सीधे डॉलर में मांगने लगे, आपका सिस्टम लॉक हो जाता था, तो उन लोगों का ये जो उद्देश्य क्या था, पैसा कमाना है। लीगल रेमिफिकेशंस फॉर योर सेल्फ एंड योर ऑर्गेनाइजेशंस, sanctions or termination of policies are not followed. According to the Science Institutes, the top vectors for the vulnerabilities available to or cyber criminals are web browser, IM clients, web applications, excessive user rights. जैसे होता क्या है, जैसे वेब ब्राउजर हम लोग सर्फिंग करते हैं, वहाँ पे हम कोई भी चीज़ पुट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन या कोई चीज सर्च कर रहे हैं, तो उसको लोग एक्सटेंशंस के थ्रू स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद उसका जो डेटा होता है उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। आईएम क्लाइंट में भी आपका पर्सनल डेटा होता है, उसको स्टोरेज कर देते हैं और उसका मिसयूज कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन से आज के डेट में, जैसे अब कोई सी जॉब निकलती है, आपको बहुत सारी, इंडिया में क्या है कि बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ की साइट है, जैसे रेलवे है या अन्य जो एस्टिमेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी साइट होती है, वेबसाइट होती है, उसके एक रेप्लिका बना देते हैं, यानी वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और ये कह देते हैं कि आप जॉब निकला हुआ है, आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद आपका पैसे बोलते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फीस इतना है, तो वो एक आप जैसे हजारों लोग फीस भर देते हैं, उसको लेके साइड हो जाते हैं। एक्सेसिव यूजर राइट्स, जैसे अभी आप लोग मोबाइल्स में आते हैं तो जितने भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करते हैं विदाउट आपके परमिशन, आप बिना परमिशन दिए उनकी कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपसे आपके इंफॉर्मेशन लेने का उन लोगों ने राइट्स आपसे ही ले रखे हैं। तो हो सके जब भी आप मोबाइल्स में जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या कोई नया साइट में जाते हैं, कोई आपकी पर्सनल डेटा इनपुट्स के मांग रहा है, आपसे बोल रहा है कि लोकेशन शेयर करिए, आपसे बोल रहा है कि क्या फोन एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस है, अगर बहुत जरूरी है तो आप एक्सेस दीजिए, नहीं तो उसको डिनाई करिए। अगर आप डिनाई नहीं कर सकते, पहली बार जब इंस्टॉल कर रहे हैं, बहुत जरूरी है आपका एप्लीकेशन, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फिर जाके उसके रिव्यू कर लीजिए, जो आपने परमिशन दिए हैं उनको रिव्यू कर लीजिए और अनचेक कर सकते हैं कि हर एप्लीकेशन में फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी इज सेफ्टी, सिक्योरिटी। We must protect our computers and data in the same way that we secure the doors to our सुरक्षा हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, उसी तरह हमारे कंप्यूटर से, कंप्यूटर के लिए भी स्क्रीन में पासवर्ड लगाइए, आपके ईमेल से उसमें पासवर्ड कीजिए। ईमेल्स में पासवर्ड्स कीजिए और जो आपका सिस्टम है उसमें किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का एंटीवायरस लगाइए। जो एंटीवायरस होते हैं उसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है,
और मैं रिकमेंडेड करूंगा कभी भी आप अपने पर्सनल सिस्टम्स हैं जिसमें बैंकिंग कार्य करते हैं, उसके लिए टोटल सिक्योरिटीज यूज करा करिए, जिसमें आपको इंटरनेट सिक्योरिटी भी मिले और एंटीवायरस प्रोटेक्शन भी मिले। इसलिए टोटल सिक्योरिटी सबसे अच्छे होते हैं किसी भी कंपनी के हैं। आप इसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो आपके सिस्टम सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस बहुत जरूरी है। जैसे हम अब बॉडी में कोई दिक्कत होती है तो हम लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो उसी तरह आपके लिए एंटीवायरस हर सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। सेफ्टी, वी मस्ट वी हैव इन द वेज दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट रिस्क एंड थ्रेट्स दैट कम विथ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, सेफ्टी बहुत जरूरी है। आपके डेटा, आपके इंफॉर्मेशन, आपकी आइडियाज, तो ये सब क्या है, हम कोई भी सिस्टम में स्टोर कर रहे हैं। तो इसके लिए सेफ्टी की, सिक्योरिटी के लिए आप एंटीवायरस और बाकी जो पासवर्ड प्रोटेक्शन है, अभी मैं पीछे आपको क्लियर करूंगा कि हम लोग पासवर्ड कैसे बनाना है, पासवर्ड कैसे बनाना चाहिए। ये जो आपका ये स्लाइड्स है, ये जो आपका ये पेज है, इसको ध्यान से देखिएगा कि यूजर अवेयरनेस मेन जो हम अभी आपसे जैसे जो हमारे टॉपिक्स है इसमें से बोले जाते हैं कि क्या करते हैं जो साइबर अटैकर होते हैं। कंप्यूटर सर्वे प्रोग्राम्स क्रिएटेड अटैक सॉफ्टवेयर, आप जैसे आप लोगों के पास आता होगा मोबाइल में या व्हाट्सएप से, सोशल प्लेटफॉर्म में, कि आपने तो फला कंपनी का इतने साल होने पे टी शर्ट फ्री है, फला मोबाइल कंपनी इतने मिलियन सब्सक्राइबर होने पे आपको 5 GB डेटा फ्री दे रहा है। इस तरह के आपके पास लिंक आउट करते हैं। लिंक आउट करने का मकसद क्या होता है कि आप उनका क्लिक करिए, लिंक करने के बाद आप डेटा देते हैं, आप परमिशन दिए होते हैं, आप सारे डिटेल्स दे देते हैं, और उनके पास ये जब डेटा, ह्यूज डेटा कलेक्शन होता है। तो आपको बताएं कि आने वाले कल जो आपकी जो डेटा का जो वैल्यू है एज अ ब्लैंक चेक है, क्योंकि अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स चल रहा है, ऑटोमेशन की तरफ हम बढ़ ही रहे हैं। तो जो डेटा होगा, हमारी बिहेवियर होगा, उसको एनालिसिस कर रही हैं, और जो इस तरह के जो डेटा कलेक्शन करते हैं अटैकर्स लोग, उन लोगों के लिए मनी अर्निंग का बिगेस्ट सोर्स है। और इन लोग कैसे आपके सिस्टम्स में ये चीज जाते हैं या आपके मोबाइल्स पे जाते हैं, हैकर्स बुलेटिन करते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन, बफर ओवरफ्लो, पासवर्ड क्रैकर्स, पासवर्ड डिस्ट्रिक्ट। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार आप इंटरनेट में सर्फिंग कर रहे होते हैं या ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, तो कोई पॉपअप खुल जाता है और आपको उसको बंद भी नहीं कर सकते हैं, क्वाइट भी नहीं कर सकते, इंड भी नहीं कर सकते। हमेशा इस कंडीशन में आप सिर्फ क्रॉस वाली बार को ही चलाइएगा, नहीं तो और जो कोई भी पॉइंट आप में क्लिक करते हैं तो वो रिडायरेक्ट करते हैं अपनी साइट पे। हो सके वहां पे आपके लिए जो पॉपअप्स है या वहां पे जो लिंक्स हैं उसके थ्रू आपके सिस्टम की डेटा को भी उन लोग या कोई प्रोग्राम आपके सिस्टम में रख देंगे और आपके डेटा को कभी भी उन लोग निकाल सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि स्क्रिप्ट जो होते हैं, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट होते हैं, उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं, यानी कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका सिस्टम किसी के पास, बस नेट कनेक्ट हो गया, बैक एंड में आपके सिस्टम का कंट्रोल दूसरे के पास है। जैसे क्रिमिनल्स क्रिएट अ सेल वुड जनरेट स्पैम सेल क्रेडिट कार्ड नंबर्स। जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे लोग होता है कि हम अकाउंट डिटेल्स, बैंकिंग मोबाइल्स का भी डिटेल्स हम सेव किए होते हैं, तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। और अभी एक इसमें क्या हुआ था कि किसी एक साइबर अटैकर था, वो क्या करता था कि सारे इंडिया के बहुत सारे बैंक अकाउंट्स थे, उन लोगों को एक अकाउंट्स में इंजेक्शन कर दिया था। तो वो सिर्फ 5 पैसे 10 पैसा हर अकाउंट से उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता रहा, किसी को पता नहीं चला और न किसी ने क्लेम किया। और ये इशू जब बैंकों को पता चली तो बैंक ने बोला कि इसको कंप्लेन करिए पुलिस में, तो लोगों ने नहीं किया कि 10 पैसा 20 पैसे ले कौन माथापच्ची करे। लेकिन जो 10 पैसा 5 पैसा आपके लिए मीनिंगफुल था या यानी कि आपके लिए उतना महत्व नहीं था, लेकिन जिसने भी स्टोर किया उसने करोड़ ऑफ रुपया उसने इकट्ठा किया। तो इस तरह से आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कहां से आपके डेटा या आपकी इंफॉर्मेशन को चुराई गई और मनी अर्निंग किया गया। इसलिए कि आप अवेयर होना बहुत जरूरी है।
लीडिंग थ्रेट्स जैसे वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है, लॉजिक बॉम्ब है, सोशल इंजीनियरिंग है, रूट किट्स है, बॉन्डनेट्स और जॉम्बीज। इसमें देखिए वायरस से तो आप लोग परिचित ही हैं, वायरस के लिए हम एंटीवायरस यूज करते हैं, वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है। सोशल इंजीनियरिंग में अब मैं आऊंगा मेन पॉइंट कि हम लोग का जो टॉपिक है सोशल इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कल से ही अगर हम अपनी जो प्लान था इसको हम सोशल कर रहे थे, कल से हम पोस्ट कर रहे हैं हर प्लेटफॉर्म में। तो यानी कि लोगों को ये पता चल चुका था कि ये प्रोग्राम इस टाइम पे होने वाला है। मेरी फोटो या जो बैनर्स से हम लोगों ने पब्लिश कर चुके थे, लेकिन वही मेरा दुश्मन है, तो उसको मेरा फोटो अभी तक नहीं था, लेकिन उसको फोटो अब मिल गया। इन फ्यूचर उसको मेरे फोटो को मैनिपुलेट कर सकता है। इसी तरह जैसे आप लोग जो अभी इसमें आपको एक इंसिडेंट है जो एनसीआर का है उसको शेयर करना चाहूंगा। जैसे उन्होंने सोशल मीडिया में वो हर एक्टिविटी अपनी जो पर्सनल एक्टिविटी थी उन लोग क्या करते थे कि अपने सोशल प्लेटफॉर्म में शेयर करते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, पूरी परिवार के साथ उन लोगों को सिंगापुर जाना था। तो बहुत सारे लोग हैं, आप लोग भी हैं, या मैं भी कह सकता हूँ कि हम कोई भी किसी भी टास्क को करने जा रहे होते हैं उससे पहले हम अपने सोशल प्लेटफॉर्म में उसको शेयर कर चुके होते हैं, लेकिन ये सुरक्षा के लिहाज से ये सही नहीं है। तो जो मैं अभी एनसीआर का जिक्र कर रहा था उसमें क्या हुआ कि जो परिवार था उन लोग सिंगापुर जा रहे थे। तो उन लोगों ने अब जैसे घर से निकले और एयरपोर्ट पहुंचे, वी आर रीचिंग इन एयरपोर्ट, वी आर टेक ऑफ फ्लाइट न्यू दिल्ली टू सिंगापुर। तो जो भी उनके सोशल पेज में फॉलो कर रहा था उसने क्या किया, अब सिंगापुर सॉरी वहां पे उन्होंने बोला कि आई टेक ऑफ टू गोइंग टू सिंगापुर फॉर 5 days। वहां पे उन्होंने पूरा सिक्योरिटी लूप दिया कि हम लोग जा रहे हैं, घर पे कोई नहीं है, यानी हम पूरे परिवार जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, और कितने दिन के जा रहे हैं, 5 दिन के लिए जा रहे थे। बैकएंड में क्या होता है, जो भी उसकी पोस्ट थी, उन्होंने पोस्ट जो था उसको पब्लिकली किया हुआ था, तो इसका नुकसान क्या होगा, जो भी उनको फॉलो कर रहा था उस पोस्ट के थ्रू उन लोग घर पे जाते हैं, सारा जो उनका जेवर होते हैं, जो भी पैसा रहता है, सब चोरी करते हैं, किसी को पता नहीं चलता। जब आते हैं तब जाके पता चलता है, तब एफआईआर होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है कि ये कैसे हुआ। तो बाद में जो साइबर सेल्स है, वहाँ पे जो एनसीआर की पुलिस है, उन लोग फाइंड आउट करते हैं कि इन्होंने का जो सोशल प्लेटफॉर्म में जो पोस्ट था उसके थ्रू ये इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, उसी तरह सबसे आप जैसे बहुत सारे अभी गर्ल्स हैं, आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, या आपके घर में भी माताएं हैं, बहनें हैं, तो मैं थोड़ा अवेयर करना चाहूंगा कि जैसे कोई भी प्रोग्राम करते हैं आप लोग, जो फोटोज हैं पोस्ट करते जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा इसको अवेयर कम कर, क्योंकि होता क्या कि जो आपकी फोटोज है, जो फोटोज होते हैं इनका मैनिपुलेट होते हैं, इसको हमारी भाषा में मर्फिंग बोलते हैं। मर्फिंग करने के बाद जो आपकी जो रेड एरियाज है, तो साइबर वर्ल्ड में रेड एरियाज है, वहां पे उस फोटो का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरी ना हो तो अपनी फोटोज को पब्लिकली कभी भी पोस्ट मत करिए। अगर आप पोस्ट भी कर रहे हैं, ओनली फॉर फ्रेंड्स करिए, जो फ्रेंड्स आपके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हो। अगर किसी का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आता है तो आप लोग पहले देखिए कि मेरा म्यूचुअल फ्रेंड कोई है क्या, क्योंकि कोई भी अननोन नेम से, मान लीजिए आपके जान पहचान वाला नेम से भी आपके पास रिक्वेस्ट आ सकता है। तो सिर्फ नेम देख के आप कभी भी एक्सेप्ट मत कीजिए, किसी का भी रिक्वेस्ट होता है, चाहे कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। तो इसमें क्या होता है कि आपकी सोशल प्लेटफॉर्म को भी हम हैक कर सकते हैं, कि जैसे आपने क्या एक्टिविटीज किया था और क्या क्या चीज कर रही हैं। तो वो जो कोई भी टास्क होता है, जैसे अगर आप पासवर्ड रिकवरी के लिए जाते हैं सोशल साइट में और आपको पासवर्ड याद नहीं होता है, तो आपके फ्रेंड्स या आपके जो पहचाने या ट्रस्टेड पीपुल है उनके बारे में वो पूछता है। अगर जो मॉनिटरिंग कर रहा होता है वो सारी चीज आपको एक्टिवेट करता है और आपके साइट को हैक हो जाता है। अभी इधर जैसे बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं कि जो सोशल प्लेटफॉर्म है
जैसे वाव है या वीडियो है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस तरह के किट आ रहे हैं। जैसे एक शॉर्ट वीडियो मेकिंग एप्लीकेशन से, तो इस वो वीडियो शेयर करते जाते हैं और उधर फोटो भी शेयर कर रहे हैं। और उसके थ्रू क्या होता है कि जैसे आप शेयर करते हैं कि आप जैसे आप कोई गॉड की तरह दिखते हैं, एक आपकी पर्सनैलिटी जैसे शेर की तरह, टाइगर की तरह है, इस तरह से आप लोगों को अप्रिशिएट टाइप में करते हैं, यानी कि एक्साइटमेंट कराते हैं। और वहां जैसे आप करते हैं उस तरह के एप्लीकेशन में जब आप ओके कर देते हैं, तो आपकी जो फेसबुक या और सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां से जो आपका डेटा है उसको रिडायरेक्ट कर लेते हैं और वो डेटा को उन लोग लेने के राइट्स ले लेते हैं। तो ये जो डेटा दूसरे प्लेटफॉर्म, यानी कि आपने एक सोशल प्लेटफॉर्म में दिया था, उस प्लेटफॉर्म से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में चला गया, यानी कि जो डेटा का राइट्स था आपने ऑलरेडी दिया। क्यों? क्योंकि आपको एक इंपॉर्टेंट पर्सन दिखना था, या कोई कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर है, चाहे चाहे सिनेमा का हो, चाहे आपका आइडियल हो, उस कैरेक्टर जैसा दिखना था, तो आपने परमिशन दे दिया। परमिशन देने के बाद नुकसान क्या होता है? जो आपका डेटा है पार्क होता है, पार्क होने के बाद वो डेटा कहीं ना कहीं सेल आउट होता है। फिर उसके बाद जो आप आपकी मेल बॉक्स से है, तो वहां पे भी मैसेज आ रहे हैं कि ही ताने बुने में आता है। अब थोड़ा सा आपको जैसे वायरस है, और वायरस अटैच इटसेल्फ टू अ प्रोग्राम, फाइल और डिस्क। जो वायरस होते हैं ना, ये भी हम लोग जैसे नॉर्मली आज के डेट में जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ये जो सिस्टम के वायरस होते हैं, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये सब एक प्रोग्रामिंग फाइल होते हैं या एग्जीक्यूटेबल फाइल के रूप में रहते हैं, और ये कई भी डिवाइस में सेव हो सकते हैं, किसी भी डिस्क में जा सकते हैं। इसको ट्रांसमिट होने के लिए कोई ना कोई नेटवर्क चाहिए होगा। When the program is executed, the virus activates and replicates itself. ये जो वायरस होते हैं किसी भी सिस्टम में जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने रेप्लिका क्रिएट करते हैं, यानी कि एक तरह से क्लोन करते हैं। The virus may be begin of the malignant but executes its payload at some point. Virus can cause computer crash and loss of data. क्योंकि वायरस बहुत सारी फाइल क्रिएट करते जाते हैं, आपका जो सिस्टम होता है उसके जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है उसको फुल कर देते हैं, वो के सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अल्टीमेट आपका डेटा भी लॉस हो सकता है, या फॉर्मेट करने के भी आ सकता है। हो सके आपका जो ड्राइव है, जो भी डिस्क है, वो भी क्रैश कर दें, उसको भी जो स्टोरेज सेक्टर है उसको खत्म कर दें। ठीक है। On order to recover the prevent virus attacks, avoid potentially unreliable वेबसाइट और ईमेल्स। आप अनरिलायबल वेबसाइट में मत जाइए। आज के डेट में कहा जाए तो जितने भी फाइनेंशियल वेबसाइट्स है या कोई भी अच्छी इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट्स हैं, उसमें HTTPS करके आता है। अभी आगे आगे आ रहा है कि, और जो HTTP वाले वेबसाइट्स होते हैं, जो स्टार्टिंग होती है HTTP से, वो थोड़ा आपके सिक्योरिटी होते नहीं उनमें, उनको इजिली ब्रेक किया जा सकता है। और जो HTTPS होता है वो सिक्योर लेयर सर्टिफिकेट होता है, जो आपको सुरक्षित करता है। और ये देखा करिए कि जो वेबसाइट और ईमेल से रिलायबल सोर्स के हों। और उसके अलावा जैसे कभी कभी क्या आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिस्टम को रिस्टोर, जो आपका एक्सपर्ट है उनको इनवाइट करिए और सिस्टम रिस्टोर कराइए, रीइंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम कराइए। यूज एंड मेंटेन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जैसे अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा अप टू डेट और कोई ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन का या ब्रांडेड कंपनी का एंटीवायरस यूज करिए। Once independent programs that replicates itself and sends copies from the computer to computer across the network connections. Upon arrival, the worms may be affected to replicate. इसमें ये जो worms होते हैं वो क्या करते हैं? इन कोई भी काम है, आप जैसे अभी इससे पहले भी मैं जिक्र किया कि नेटवर्क में रेप्लिका, बहुत सारे रेप्लिकेट बना देंगे और नेटवर्क के थ्रू फाइल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। आपको तो अभी कहना चाहूंगा, जैसे साइबर वार होता रहता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बात करता हूँ, तो
एक दूसरे कंट्री में के जो वेबसाइट है उसमें जाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इन लोग बेसिकली जो वर्म्स यूज करते हैं, किया जाता है, यानी कि रेप्लिका हम यूज कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, भेज रहे हैं। अगर जैसे ही वो प्रोग्राम जाके वहां पे किसी भी सिस्टम में स्टोर हो जाता है, स्टोर होने के बाद हम जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो अटैकर्स यानी कि साइबर एक्सपर्ट होते हैं कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव में वर्क होता है, ये कंट्री वाइज डिफर होता है। जो कंट्री अपनी कंट्री के लिए काम कर रहा होता है वो एथिकल हुआ होता है, और एंटी कंट्री के लिए वो जो एथिकल हैकर भी अनएथिकल हैकर हुआ होता है। ये इसलिए इंस्टीट्यूशन कंट्री वाइज और डिफर करता रहता है। इनका मेन मकसद होता है कि दूसरे का इंफॉर्मेशन को गेन करें। तो जो मैं अभी कह रहा था कि जो सिक्योरिटी होता है, यानी कि वर्म्स के थ्रू हम किसी भी कंट्री का सिक्योरिटी से रिलेटेड उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन या स्ट्रेटेजी या फॉरेन पॉलिसीज जानने की कोशिश करते हैं। ये हर कोई कंट्री करता रहता है। अब मैं बेसिकली यूज करते हैं वर्म्स को। Logic bombs and Trojan horse. Logic bombs, malware logic executes upon certain conditions. The programs is often used for otherwise legitimate reasons. Example: for software which malfunctions of maintenance fee is not paid. Employee triggers or database erase when he is fired. यानी कि कोई एम्प्लॉय है, उसको हम फायर कर रहे हैं तो वो लोग डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं। या दूसरी चीज हो सकता है कि जैसे सॉफ्टवेयर है आप चला रहे हैं तो उस बोलता है कि आपका मेंटेनेंस दिक्कत है, फीस पेड नहीं है, आपको काम करने दें। ट्रोजन हॉर्स मस्करोड एज बिगिंस प्रोग्राम्स व्हाइल क्वाइटली डिस्ट्रॉइंग डेटा और डैमेजिंग योर सिस्टम। जो इन लोग क्या करते हैं कि आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है। जैसे बेसिकली जो बच्चे होते हैं घर पे, उन लोग क्या करते हैं, गेम को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद उन लोगों से पहले तो फ्री में इन लोग परमिशन दे देते हैं, फिर उसके बाद फिर इन लोगों से पैसे मांग लेते हैं। जैसे अभी एक कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, तो वहां पे हुआ क्या था कि एक बच्चे को इंटरनेट में गेम्स की लत लग गई और मम्मी पापा का क्रेडिट कार्ड उनके घर पे, मम्मी के पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड था, उसको मिल गया था, उसको पता था, उसका पिन भी एक बार उसको था। तो जब भी उसको गेम खेलना होता था वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते रहे। तो लगभग इंडियन 5 लाख रुपीज तक उसने खर्च किया। तो बाद में उसके कंप्लेन हुई, कंप्लेन होने ये कैसे हुआ, तो बच्चे ने यूज किया, फिर परिवार ने बोला कि नहीं हम लोगों ने यूज ही नहीं किया। तो वहाँ की जो पॉलिसी थी उसके अनुसार बच्चे अंडर एज थी, तो फिर बाद में जो भी कंपनी में जहाँ पे भी पैसा जा रहा था उनको वापस करना पड़ा, क्योंकि वो चाइल्ड ने न जानते हुए गलती कर रही थी। ये क्या होता है बेसिकली ट्रोजन हॉर्स। अब आते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट पे कि सोशल इंजीनियरिंग मैनिपुलेट्स पीपल्स इनटू परफॉर्मेंस एक्शंस और developing confidential information similar to a confidence trick or simple fraud. The terms applies to the use of deceptions of the gain information, commit fraud or access computer systems. जैसे आपके पास फोन कॉल आते हैं, जैसे बैंक से बोलते हैं कि मैं फला बैंक से बोल रहा हूँ, आपका बैंक खाता का ये नंबर है, आपकी जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है बंद होने वाली है। आप सभी के पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते हैं, उसमें 16 डिजिट का नंबर होता है जो बेसिकली इंटरनेशनल रूप में होते हैं। 7 से लेकर 15 और 16 डिजिट तक का नंबर होता है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी आप डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं यानी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू, इसमें एक होता है सीवीवी नंबर। आप लोग अवेयर होंगे सीवीवी नंबर पे, जो 3 डिजिट का होता है, जो बेसिकली जो कार्ड होते हैं उसके पीछे लिखा होता है, जो स्ट्रिप होते हैं जहाँ पे आपको सिग्नेचर करने के लिए बोला जाता है, उसके लास्ट में 3 डिजिट का होता है। इसको कभी भी किसी से शेयर ना करिए। दूसरी चीज होती है ओटीपी। ओटीपी के बारे में आप लोग हर कोई अवेयर है, आज के ओटीपी हम लोग डिजिटल में बहुत जगह यूज कर रहे हैं। ओटीपी नेवर शेयर। इवन आपके फ्रेंड के कॉल आ रहा है कि ओटीपी बता दीजिए, कुछ काम कर रहा है, तो उसको भी मत करिए। क्योंकि होता क्या है कि आज के डेट में जो वॉइस है, वॉइस सैंपलिंग हम लोग हर जगह दे रहे हैं, तो हमारी वॉइस को ही मैनिपुलेट सॉफ्टवेयर के थ्रू करके भी आपको फोन आ सकता है। हो सके उसी नाम से, जो आपका फ्रेंड का नाम जिस नाम से सेव किया आ सकता है। सो आप डिनाई कर दीजिए। कोई भी फ्रेंड्स या आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी पूछता है कि मुझे फोन में कि आपका ओटीपी बता दीजिए या सीवीवी नंबर बता दीजिए, ये ना करें। जैसे फोन कॉल्स
इन पर्सन व्हाट एथेनिकली आर यू, योर मदर्स मैडन नेम, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं आपकी मम्मी का शादी से पहले का नाम क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा फिर इधर बैंक से नोटिस करके भेज देते हैं, बैंक वाले बहुत सारे आपकी ईमेल्स में जाएंगे तो आपका इनबॉक्स होगा, बहुत सारे स्पैम मेल आए होंगे। तो इस तरह के ये ऑफर वाले बहुत रहते हैं। और इधर कभी कभी क्या होता है कि आपके सिस्टम में ये दिक्कत है, मैं आ रहा हूँ, इंजीनियर्स कॉल्स आते हैं, तो इसको भी अवॉइड करिए कि जो जब तक आपको ट्रस्टेड नहीं करते हैं, जब तक आप खुद R&D नहीं कर रहे हैं। फिशिंग, काउंटरफिट ईमेल्स, ये सबसे ज्यादा आज के डेट में अगर क्राइम होता है इंटरनेशनली तो ये फिशिंग के थ्रू ही होती है। यानी कि आपको फिशिंग इन द सेंस की लालच दिया जाता है। आप जैसे हम नदी में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो हम क्या करते हैं, कांटे में कोई कीड़ा लगा देते हैं और जाल बांध देते हैं, रस्सी महीन डोरी होती है, उसी में हम फिश को इनवाइट करते हैं। सेम कहानी होती है, उसका टर्मिनोलॉजी वहीं से इसको यूज किया गया, नहीं फिशिंग, यानी कि आपको लालच दिया जा रहा है। लालच में ये बोला जाएगा कि आपने इतने करोड़ डॉलर रुपया जीता है रॉयल बैंक ऑफ ब्रिटेन से या स्विस बैंक से या इंडिया के बहुत सारे बैंक से, उस तरह से मेल आते रहते हैं। इस सबको टोटली डिसएग्री कर दीजिए, टोटली इन लोगों को मेल को क्लिक ही मत करिए। अगर इस तरह का मेल है तो इसको रिमूव कर दीजिए, और हो सके अगर आपका सिस्टम परमिशन दे रहा है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। गलती से भी अगर आपने इन किसी में भी लिंक में आपने क्लिक किया तो उन लोग एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, उस लिंक पे आप डिटेल देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि सर आपका ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या कुरियर चार्ज के रूप में इतना पैसा लग रहा है। मान लीजिए एक 10 करोड़ की लॉटरी दिखाए और आपकी इतनी कॉन्फिडेंस में लेंगे कि बोलेंगे आप शेयर मत करिएगा सर, अगर शेयर करेंगे तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा, और जिससे शेयर करेंगे उसको ये पैसा मिलेगा। इस तरह से जो भी बंदा होगा, जो भी पर्सन होगा, उसको एक कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, यानी कि उनको फियर ऑफ लॉस देते हैं, यानी खोने का भय दिखाते रहते हैं। तो आप लोग इस तरह के जो लिंक होते हैं उस पर कभी भी ट्राई मत करिए। जैसे बहुत सारे फ्री टी शर्ट है, डेटा है, फ्री रिचार्ज है, मत पढ़िए। पढ़ने का मतलब है कि आप फाइनेंशियल रूप में आपका लॉस हो सकता है। फिशिंग seemingly trustworthy entity asks for the sensitive information such as SSNs, credit cards numbers, login IDs और पासवर्ड via ईमेल, जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। फार्मिंग, काउंटरफिट वेब पेजेस, अभी इससे थोड़ा सा पहले मैं शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है, तो हम चाहते हैं कि जॉब अच्छा मिले, तो हम देखते हैं सरकारी जो भी महारत्न कंपनियां हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रेलवे है या प्राइवेट सेक्टर के अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, IT कंपनीज हैं या MNCs कंपनी है, वहां पे हम चाहते हैं कि हमारा जॉब लग जाए। तो इसका फायदा जो साइबर अटैकर्स होते हैं या जो नेगेटिव माइंड्स के जो डेवलपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि सेम रेप्लिका क्रिएट कर देते हैं पूरी वेबसाइट की। जो लेमन पीपुल होता है इसको जान नहीं पाता है कि ये एक्चुअल है कि नहीं। और बहुत सारी जैसे MLM कंपनियां होती हैं कि जैसे MLM हमारे इंडिया में क्या है, इलीगल है, लेकिन उन लोग क्या करते हैं कि देखिए उन लोगों ने वेबसाइट डेवलपमेंट कर लेंगे, उसके बाद वो ज्वाइन कराएंगे लोगों से, मनी कलेक्शन करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो इस तरह के किसी भी उसमें ना पड़िए। जैसे अभी जो वेबसाइट होते हैं वहां पे आप चेक करिए, और जो उनके कस्टमर केयर होते हैं, टोल फ्री नंबर होते हैं, वहां पे उन लोग एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं कि उनका जो एक्चुअल वेबसाइट क्या है, जो सोर्स है उसको फाइंड आउट कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कभी हड़बड़ी नहीं, कि एक्चुअल साइट में जाना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो जो आपका इन्फॉर्मेशन है ना गलत हाथों में पहुंच जाता है। बूटनेट, or bootnet is a numbers of compromised computers used to create and send spam or virus or flood or network with message is a denial of service attack। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग फाइल्स हैं, उनको भेज देते हैं, किसके थ्रू, स्पैम मेल के थ्रू, वायरस के थ्रू। एक तरह से हम बाढ़ क्रिएट कर देते हैं नेटवर्क में, और फाइल इतनी भेज देंगे कि आपका सिस्टम में काम करना बंद करे, यानी डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाता है। The compromised computers are called zombies।
मैन इन द मिडिल अटैक। साइमल्टेनियसली आजकल क्या होता है कि जो सर्वर है, सर्वर के बीच में जो गेटवे होती है उसको भी पास करते हैं अटैकर्स। आप तो सोचते कि मैं ऑथेंटिकेट पर्सन या ऑथेंटिकेट वेबसाइट से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उन लोग क्या कर रहे हैं, जो वीपीएन या जो आपके गेटवेज हैं वहीं पे पासवर्ड कर देते हैं। ये आप जो मेरा स्क्रीन देख रहे हैं, तो इसमें एक विक्टिम होता है, एक उधर वेब सर्वर है और अटैकर है। वो क्या करता है, विक्टिम डायरेक्ट कनेक्ट न हो, क्लाइंट के जो वेब सर्वर है उसमें डायरेक्ट कनेक्ट ना होते, क्या करता है अटैकर के सर्वर के थ्रू उसमें कनेक्ट होता है। तो अटैकर क्या करता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको मैनिपुलेट कर देता है और आगे फॉरवर्ड करता है, या फिर आपको बैकएंड में आपको लॉलीपॉप्स देता है, यानी एक तरह से फिशिंग, यानी कुछ लालच दे देता है। इससे आप लोग बचिए। रूट किट ओपन penetrating of a computer or hackers may install a collections of programs called rootkit, may enable easy access for the hackers into the enterprises. Keystroke logger eliminated evidence of break-in, modifies the operating systems. इसमें क्या होता है, मेन बेसिकली उन लोगों का मोटो होता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इम्यूलेटेड कर सकते हैं, या उसको इन्फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर स्टार्टिंग में हमने बोला था कि पासवर्ड कैसी होनी चाहिए। इस फिगर्स को देखिए कि जो पासवर्ड होते हैं हम किस तरह का रखते हैं, तो कितने टाइम में उसको क्रैक हो सकता है, यानी कि वो हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो हमारी भाषा में कि उसको जो आपका पासवर्ड है उसको हम गेस कर सकते हैं। तो उसके लिए टाइम फ्रेमिंग दिया गया है, क्योंकि इसको डिटेल्स बताऊंगा, बहुत टाइम है, आपको देख सकते हैं कि इसमें एटलीस्ट अगर आप 8 कैरेक्टर्स ऑल की वर्ड्स यूज करते हैं तो 2 आवर्स पे आपका पासवर्ड ब्रेक हो सकता है। लेकिन इसको 12 कैरेक्टर करते हैं और अल्फा न्यूमेरिक +10, तो ये भूल जाइए। 12 कैरेक्टर सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक भी कर दीजिए तो 96 ईयर्स लगेंगे उसको क्रैक करने में, और 12 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक +10 डिजिट कर देते हैं, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। और आगे का वही नहीं, इसलिए जो पासवर्ड है हमेशा अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हुए पासवर्ड बनाएं। अभी आते हैं कि हमारे हम इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गई, इंटरनेट भी हमारे पास आ गया, कंप्यूटर्स भी आ गए, तो इसमें क्या रूल्स बने हुए हैं कि हम कोई कार्य कर रहे हैं या कुछ तरह से हम इसको गवर्निंग कैसे किया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंडिया में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट स्टार्ट हुआ था 2000 में, फिर 2008 में अमेंडमेंट हुआ, और इसमें अमेंडमेंट में जो हुआ था मेनली अनऑथराइज्ड acquisitions of electronics data that compromise the security, confidentiality, and integrity of personal informations. Its support and regulated the followings: provided legal recognitions to electronics documents, e-commerce activities. The government introduced National Cyber Security Policy on 2nd of July 2013 for providing secure and flexible cyberspace. थोड़ा सा आप लोगों से एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन देना चाहूंगा आप लोगों से, थोड़ा सा मैं टेक्स्ट करिएगा, या एक इंटरेस्टिंग है। आप किसी के वेबसाइट में कुछ फोटोज हैं, उसको मॉडिफाई करके पोस्ट करते हैं, तो आप कौन सा क्राइम कर रहे हैं? और जैसे डॉक्यूमेंट्स है उसको मैनिपुलेट करके भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कौन से क्राइम कर रहे हैं? तो इसको थोड़ा आंसर कर लीजिएगा, तो हमको फिर लास्ट में इसको बताऊंगा कि इसका जो ऑफेंसिव है इसमें क्या हो सकता है। अभी आपको बताता हूं, आप लोग सोचे रहिए इस चीज को। आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटी compromise symptoms: antivirus software detect a problem, this space disappears unexpectedly, pop-ups suddenly appear, something's selling security software, files or transactions appear that should not be there, the computer slow down to occur, unusual message, sound or display on your monitor,
stolen laptops. One stolen every 53 one stolen every 53 seconds. 97% never recovered. सोचिए, the mouse pointers moves by itself, the computers spontaneously shuts down or reboots, often unrecognized or ignorance problems. अब इस तरह से कुछ आपको दिक्कत लगता है तो वहां पे हो सके आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा होगा। इसलिए अगर इस तरह का कभी भी सिचुएशन आ रहा है तो सिस्टम को ऐसे प्रॉपरली शट डाउन करिए, या आप मोबाइल्स पे हैं, मोबाइल को एक तरह से रिबूट या रिस्टोर कर सकते हैं, या फिर उसको पावर ऑफ करिए, नेट बंद करिए। सबसे पहले काम है इंटरनेट को बंद कर दीजिए। malware detection, spyware symptoms: change to your browser homepage start page, ending off on the strange site when conducting a search, system based firewall in turned off automatically, loss of network actively while not particularly activated, access pop-up windows, new icons, programs, favorites which you did not add, frequent firewall alerts about unknown programs when trying to access the internet, poor system performance. Best practice to avoid threats: defines in depth, use multiple layers of defense to address technical, personal and operational issues. आपको कहना चाहूंगा जो इंटरनेट के जो लेयर्स होते हैं, एक ओनियन को उठा लीजिए, ओनियन में जिस तरह से लेयर होता है उसी तरह ही आपके इंटरनेट में भी सिक्योर, ठीक है, लेयर होते हैं। जो लेयर्स होते हैं इनका डिफरेंट जो लेयर है उनका डिफरेंट टास्क होता है और इस तरह से कार्य करते हैं, इसमें आप क्लियर हो सकते हैं। Antivirus and anti-spyware software. Antivirus software detects certain types of malware and can destroy it before any damage is done. Install and maintain antivirus and anti-spyware software. Be sure to keep antivirus software updated. Many free or commercial options exist. Contact your technology support professional for the assistance. ये कुछ एंटीवायरस हैं, इनमें से आप ट्राई कर सकते हैं, और फिर भी आपका जो ट्रस्टेड जो आपका असिस्टेंट है उनसे संपर्क करवाइए, उनके अनुभव होते हैं, उनका फायदा उठाइए एंटीवायरस परचेज करने से पहले भी। होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स ऑफ फायरवॉल act as a barrier between your computers, public private networks and the internet. ये जो नेटवर्क्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक इंटरनेट होता है, एक इंट्रानेट होता है। जो इंटरनेट होता है वो विथ इन ऑर्गेनाइजेशंस यूज होते हैं, इंटरनेट होता है ये ग्लोबली होते हैं। ये आप लोग जब भी किसी बैंक में काम करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां पे ज्यादातर इंटरनेट यूज होता है। Hackers may use the internet to find use on your computer, क्योंकि उन लोग आप अभी पहले मैं क्लियर कर चुका हूं आप लोगों को कि जो हैकर्स हैं कि एप्लीकेशंस होते हैं जो उनको आपके सिस्टम में या आपके मोबाइल्स में इंस्टॉल करना चाहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप सिस्टम में जाते हैं कि आपका एंटीवायरस खत्म होता है तो आप क्या जाते हैं फ्री एंटीवायरस सर्च करते हैं। जैसे सर्च करते हैं और डाउनलोड करते हैं, आपने डाउनलोड किया था, आपको रिक्वायरमेंट था एंटीवायरस, लेकिन एंटीवायरस के साथ बहुत सारी चीज डाउनलोड होकर वो इंस्टॉल हो जाती है। जब आप इंस्टॉल करते हैं बहुत सारी चीज इंस्टॉल होते हैं। ये क्या होता है, होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स न होने की वजह से होता है। फायरवॉल्स फिल्टर नेटवर्क पैकेट्स दैट इंटर और लीव्स योर कंप्यूटर। जो इंफॉर्मेशन आता है हमारे पास कि आप इस तरह समझ लीजिए छोटी छोटी पैकेट के रूप में आते हैं, जैसे डेटा है, बिट, बाइट, MB, GB, यानी कि बिट और बाइट जो बेसिक है इस फॉर्म में हमारे पास डेटाज आते रहते हैं। प्रोटेक्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम।
कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो तो सबसे पहले तो ये है कि आपको अप टू डेट रखना चाहिए, इंटरनेट कनेक्ट करिए और अप टू डेट रखिए, और लाइसेंस वर्जन नहीं यूज करें, क्योंकि जो पायरेटेड यूज करते हैं तो आपका जो डेटा है उसका लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। जो वर्ल्ड में जो लीडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडर है माइक्रोसॉफ्ट, इसमें एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगा कि जैसे आप बहुत सारे लोगों के सिस्टम में अभी विंडोज 7 आप लोग चला रहे होंगे, तो आज के डेट में विंडोज 7 भी सपोर्ट बंद हो चुका है, उससे पहले वाला तो भूल ही जाइए। तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कम से कम आपके जो i3 से एबव के जो भी सिस्टम्स हैं, i3 से पहले के जो प्रोसेसर्स हैं उस पे तो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन इसके बाद वाले जितने भी सिस्टम्स हैं इसको विंडोज 10 अपडेट करें। i3 आपके प्रोसेसर हैं तो ये सपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 तक का जो भी सपोर्ट था या सब खत्म कर चुका है। तो आप खुद के रिस्क पे आप ये सब कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर आपका कोई चीज लॉस होता है तो कंपनी इस पे लायबल नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो अप टू डेट रखें। Microsoft regularly issue the patches or updates to solve security problem in their software. If these are not applied, it leaves your computer vulnerable to attackers. ये जो पैचेज होते हैं ऐसा समझ लीजिए ना कि आपने घर बना के रखा हुआ है लेकिन कहीं पे रिस रहा है, तो जो कंपनियां होती है प्रोग्राम के में जो लूप होल्स होते हैं उसको पैच अप करके इसको खत्म करते हैं। तो इसलिए पैच बार बार रिलीज करते हैं, चाहे आपका मोबाइल स्मार्ट एंड्रॉइड फोन है तो उसके लिए भी जैसे बोलते हैं कि आपका अपडेट आ गया। बेसिकली ये अपडेट क्या होता है कि आपका घर तो बना हुआ है, तो जो कोई चीज आपकी लूप होल थी तो उसको पैचअप किया गया, यानी कि खत्म किया गया। इसलिए कंपनियां बार बार आपको अपडेट भेजती रहती है कि आपको डेटा को प्रोटेक्ट करते रहिए, इसलिए ये पैचअप आते हैं। ये जो पैचेज है मेन बेसिकली ये है। द विंडोज अपडेट्स फीचर्स built into the Windows can be set up automatically, download and install update. Avoid logging is a administrator. Apple provide regular updates to its operating systems and software applications. Apply Apple updates using the App Store applications. जैसे गूगल का ऐप स्टोर है, अगर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो गूगल का प्ले स्टोर है, थोड़ा आपने जो भी एप्लीकेशंस उनको अपडेट करते रहे। अब ये जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे इसके बारे में बता चुका हूँ, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये कैसे पासवर्ड होना चाहिए। मेक पासवर्ड इजी टू रिमेंबर बट हार्ड टू गेस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी NIST यूएसए स्टैंडर्ड्स, जो बेसिकली हम यूएसए का क्यों लेते हैं नाम, कि इन लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। क्योंकि अगर साउथ एशिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हम रिसर्च करने के लिए भी इतना फंडिंग अभी प्रोवाइड नहीं करती है गवर्नमेंट, तो वहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फंडिंग करती है तो वहाँ पे रिसर्च ज्यादा होता है, इसलिए हम जो सिस्टम या डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं यूएस स्टैंडर्ड की फॉलो करते हैं। बी एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स इन लेंथ, कम से कम 10 कैरेक्टर हो। मस्ट कंटेंट कैरेक्टर फ्रॉम एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग्स 4 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, इंग्लिश अपर केस, इंग्लिश लोअर केस, नंबर्स, नॉन अल्फान्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर। Must not contain the usernames or past of the usernames. Must not contain easily accessible or guessable personal information about the users or users family, such as the birthday and children's names, addresses, etc. Creating strong password or a familiar code can be a good start. Love is a smoke match with the form of the size. William Shakespeare. Using the organization standards as a guide, choose the first characters of each word. आप ये उदाहरण फॉर एग्जाम्पल देख सकते LIASMWTFOS इसको ले सकते हैं। नाउ एड अ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स, जैसे इसमें किया गया L को कैपिटल किया गया, 1 न्यूमेरिक दिया गया, S की जगह डॉलर यूज किया गया, MW लोअर केस किया गया, TF कैपिटल किया गया, OS आप देख सकते हैं कि इसको 10 कैरेक्टर्स 2 न्यूमेरिकल्स 1 सिंबल है, मिक्स इंग्लिश के से पासवर्ड जस्ट इट्स ऑल 4 टाइप्स और बी मोर
क्रिएटिव। आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जो पहले मैंने बताया था कि एक ये जो पासवर्ड के लिए आप कितने में कहाँ पे हैक होगा, ये जो पासवर्ड क्रैकिंग, तो मैं आना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट था, यानी कि ये जो पेज है, इसके अनुसार आप गेस कर सकते हैं किस तरह का पासवर्ड होना चाहिए हमारे साथ या हमारे सिस्टम में या में। पासवर्ड वाले नेवर यूज एडमिन, रूट, एडमिनिस्ट्रेटर और डिफॉल्ट अकाउंट्स और पासवर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। और आपके जो कीवर्ड होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं QWERTY यूज करते हैं। ये बहुत गेसेबल होता है और सबसे कॉमन पासवर्ड होती है, इसको यूज कभी मत करिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और रिवर्स में ये भी करते हैं, ये भी मत करिए, ठीक है। और गुड पासवर्ड इज private, used by only one person, secret, it is not storage in the clear text anywhere, including post its root notes, easily remembered, no need to write it down, content the complexity required by your organization, not easy to guess by a person's or a program in a responsible time, such as several weeks, change regularly, follow organization standards, avoid solar surface and the entire your credentials carefully. If a password is entered in the username field, those attempts usually appear in system logs. Avoid social engineering and malicious software. Do not open the email attachment unless you are expecting the emails and the attachment and you trust the sender. मैं इसके बारे में पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ. Do not click on the links in the emails unless you are absolutely sure of their validity. Only visit and or downloaded software from the web page you trust. क्योंकि ये आपको पहले सबसे शुरुआत में बताया कि आपका जो वेबसाइट है आप ट्रस्ट ट्रस्ट करते हैं या आप जानते हैं, या फिर अगर आपको पता नहीं है तो आप उनके कस्टमर केयर में फोन करिए, उनका ऑफिशियल साइट क्या है वहां पे सर्च करिए. इसी चीज में क्लियर कर दूंगा. Avoid stupid hackers tricks. Be sure to have a good firewalls or pop-up blockers installed. Pop-up blockers do not always block all pop-ups, so always close to pop-up window using the X, यानी क्रॉस यहाँ पे करने का मतलब आप क्रॉस यूज करिए, न कि यस या नो या कैंसिल. ये सब तीनों में कोई भी चीज आप यूज मत करिए क्योंकि इसमें भी उन लोग प्रोग्राम को लूप किए होते हैं, ठीक है. नेवर क्लिक यस, एक्सेप्ट और इवन कैंसिल. Infected USB drives are often left unattended by hackers in public place. जैसे आप साइबर कैफे वगैरह यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो आप यूएसबी लगाते तो इन्फेक्टेड हो सकता है या उसके थ्रू आपके सिस्टम में भी वायरस पहुंच सकते हैं. इससे बचिए. सिक्योर बिजनेस ट्रांजेक्शंस. जैसे अभी हम लोग आज के डेट में क्या होता है, कोई भी चीजें, अभी लॉकडाउन का सीजन चल रहा है तो हम लोग बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ता है. जैसे बैंकिंग, जो भी बैंकिंग में या जिस लिंक पे भी आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो ये जो HTTPS जो ब्राउजर होता है इसके साइड में ये HTTPS कोलन आती है, इसको बहुत केयरफुली देखिए. इसके अलावा ये जो साइड में नोड होते हैं, कोई भी वेबसाइट होता है उस साइड में एक की मैं एरो करके थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पे आपका की बन के आया होता है कि आप सिक्योर साइट में है, ठीक है. अगर ये नहीं है तो आप डिनाई कर दीजिए, मत पेमेंट करिए क्योंकि इससे आप फाइनेंशियल लॉसेस से बचेंगे. बैकअप इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन. नो सिक्योरिटी मेजर इन 100% रिलायबल. क्यों आप लोगों ने सिस्टम में, कोई भी सिस्टम है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, 99.99% ही इंश्योर करते हैं. 100% क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 100% अभी तक हो नहीं पाया है क्योंकि जो कोई भी सिस्टम है उसमें 0.01% वर्नेबिलिटी चाहिए. जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे जो वर्नेबिलिटी इसका 0.01 है वो बढ़ता रहता है. इसकी वजह से 100% रिलायबल नहीं है. नो सिक्योरिटी मेजर इन द 100% रिलायबल, ठीक है. इवन द बेस्ट हार्डवेयर फेल्स. व्हाट इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट टू यू इफ योर बैकअप रिसेंट ऑफसाइट सिक्योर प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड इनक्रिप्टेड टेस्टेड, ठीक है. तो आज के डेट में सबसे ज्यादा
जो डॉक्यूमेंट्स है या हम लोग शेयर करते हैं, बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं या सोशल प्लेटफॉर्म में डेटा इंक्रिप्टेड करके ही करती हैं। फिर भी इंक्रिप्टेड टूल्स हैं, उन इन टूल्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर भी उसकी बहुत सारी मैथोलॉजी है, उसको बताऊंगा तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा। तो इतने समझ लीजिए कि ज्यादातर जो सोशल साइट है या जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है, उसमें इंक्रिप्टेड का बहुत सारी टर्मिनोलॉजी उसको यूज किया जाता है, जिससे कि आप और सिर्फ जो आप सेंडर और जो एंड यूजर है यानी जो रिसीवर है, वही जो एक्चुअल मैसेज है उसको रीड कर सके। इवन द सर्वर अगर कंपनी भी चाहे कि आपने क्या मैसेज सेंड किया है, वो ब्रेक नहीं हो सकते हैं। इसमें ऐसा समझ लीजिए कि आपने अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे मैंगो लेना है, मैंगो खाना है, तो आपका और जो आपका फ्रेंड है उसका अंडरस्टैंडिंग है मैंगो मतलब है ग्रेप्स। तो आपका फ्रेंड आपकी मैसेज को इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में समझ जाएगा, यानी कि आपको एक्चुअल मैंगो नहीं खाना था, आपको ग्रेप्स खाना था। तो ये इंक्रिप्टेड टर्मिनोलॉजी इस तरह से यूज होती है। तो इसमें गेस बहुत कम हो सकती है, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। कभी अगर आप लोगों को जानना हो तो पर्सनली आप टच में रहिए। मैं अपना ईमेल्स आईडी या फिर ये जो अपने जो स्काई फाउंडेशन या वुमेन स्लिट से सबके पास मेरा डिटेल्स है, आप लोग ले सकते हैं, वहां से भी आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भरत भैया, अपने लेक्चर के द्वारा हम सभी लोगों को जानकारी के साथ अपग्रेड करते हुए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्वेता श्रीवास्तव जी जो हमारी को होस्ट है, आज की कन्वीनर है, और शुभान राज जी, ये काइंडली जो है, और साथ ही साथ अर्पण जी को कि बी ऑन योर गार्ड। और श्वेता जी और शुभान जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली जो चैट बॉक्स में जो सेशन है, हमारे माननीय गेस्ट, सम्मानित गेस्ट अभी हमारे साथ बने हुए हैं, उनको लेकर के और उनकी शंकाओं का समाधान निवारण अवश्य करें। ओवर टू यू श्वेता जी। Okay, let's move towards our interactive session. So the first question is, there is a query from Rajan ji from Bahraich over our social platform. What is the meaning of 1G, 2G, 3G, 4G, etc.? Over to you, sir. देखिए, जो 2G, 3G, 4G का जो टर्मिनोलॉजी है, बेसिकली क्या होता है कि इसका डेटा रेट से होता है। जैसे पहले जो इंटरनेट शुरुआत में आई थी तो 256 kbps की स्पीड कंपनी ऑफर कर रही थी, आज के रेट में आपको mbps की स्पीड ऑफर कर रही है। तो ये जो डेटा ट्रांसफर रेट है, इसी का एक स्टैंडर्ड है। 1G तो खैर स्टार्टिंग ही 1G से हुआ था, लेकिन 2G, 3G, 4G में एग्जिस्टिंग कर रहा है। ये डेटा रेट होता है बेसिकली, जो डेटा ट्रांसफर, जैसे आज के रेट में आप लोग जानते हैं कि MB जानते हैं, कितने आपका मोबाइल में 1 MB की डेटा स्पीड आ रहा है या 540 kbps की स्पीड आ रहा है। तो ये जो स्पीड होती है डेटा की, ये 2G, 3G के टर्मिनोलॉजी है। Next question is, how we can understand from the behavior of my system that it has been hacked or not? उत्तम सिंह wants to know that. इसमें अभी थोड़ी देर पहले मेरे प्रेजेंटेशन में आपको क्लियर किया कि कभी-कभी क्या होता है कि आप सिस्टम ऑन करते हैं, इंटरनेट में आपका सिस्टम जुड़ा हुआ है और आप माउस को ऐसे छोड़े हुए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका माउस ऑटोमेटिकली चल रहा है, या कोई पॉपअप है या कोई आपके बहुत सारे विंडो स्क्रीन खुल रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी भी ऑपरेट कर रहा है, या ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि कभी अगर उस तरह से वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपका डेटा, जैसे अगर मोबाइल की बात कर रहा हूँ तो आपकी डेटा की स्पीड जो जरूरत है होती है, नॉर्मली आपको इतने स्पीड, जैसे वीडियो देख रहे हो तो इतनी स्पीड में चल रहा होता है, ब्राउजिंग कर रहे हो तो इतने स्पीड में चल रहा होता है, और सर्टेनली वो डिमांड ज्यादा हो रहा है। तो वहां पे आपको अवेयर होना चाहिए, चाहे आप लैपटॉप में हो या अपने सिस्टम्स में हो, चाहे मोबाइल पे हो, कि कहीं मेरा सिस्टम्स किसी दूसरा तो इंटरप्ट नहीं कर रहा है, या हैक तो नहीं कर रहा है, या आपकी प्राइवेसी में दखल तो नहीं दे रहा है। शुभम शर्मा जानना चाहते हैं, सर क्या गूगल सिक्योरिटी एंटीवायरस का काम करता है मोबाइल के लिए? देखिए, गूगल जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उन लोगों ने गूगल में जो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म्स हैं, तो गूगल ने प्रोवाइड किया हुआ है कि आज के डेट में, अगर अभी एक और चीज आपको बता दूं कि जैसे गूगल की विंडो 10 यूज करते हैं आप जेन्युइन, तो उन लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, फिर भी आपके जो गूगल्स के प्लेटफॉर्म होते हुए भी एंटीवायरस
या आपके मोबाइल्स के लिए भी आते हैं आज के डेट में, उनको भी होना चाहिए। क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में आज के डेट में जैसे कोरोना का संक्रमण है, हमारी बॉडी बहुत सारा ज्यादा एक्टिव है, यानी कि हमारा जो लेवल है, जो विल पावर है बहुत अच्छा है। लेकिन आज के डेट में हम लोग डाइट अच्छी अच्छी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि हम जो वायरस है हमारे पास अटैक हो रहा है तो उसको हम हजम करें, या वो हमारे पास अटैक ना करो। इसी तरह से 1 से 2 बेहतर। तो जो गूगल सिक्योरिटी है वो भी अच्छा है, और इसके अलावा आप जो दूसरे जो एंटीवायरस कंपनीज है उनका भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। ये 2 लेयर हो जाएगा, आपके लिए बेहतर है। Okay, next question is from Kshitish Srivastav. Do we need any additional antivirus software for our Android devices? बिल्कुल। जो एंड्रॉइड डिवाइस होते हैं, बिल्कुल मैं कहूंगा कि जैसे रिकमेंडेड करूंगा कि आप लोग एंटीवायरस ले लीजिए, क्योंकि एंटीवायरस आपके मोबाइल पे होनी चाहिए। बहुत सारे मोबाइल वर्जन में भी आज के डेट में एंटीवायरस प्रोवाइड कर रही है कंपनियां। इससे ये होता है कि आपका जो प्रोटेक्टिंग लेवल होता है ज्यादा होता है। इससे आपका फिल्ट्रेशन हो गया, आपकी वॉइस फिल्ट्रेशन हो गया, आपकी इमेज हो गया। जैसे आप लोग बहुत बार सुनते हैं कि जो चाइनीज सर्वर है या चाइनीज एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं, आपका डेटा या आपकी जो इमेजेस है उनको आपको बिना बताए पास ऑन कर रहे हैं। तो ये जो एंटीवायरस है, इस चीज को आपको परमिशन आप एंटीवायरस में सेटिंग कर देंगे तो ये चीज आपको प्रिवेंट करेगा, ये आपके लिए फायदे में रहेगा। Uttam Kumar Singh wants to know about dark web. डार्क वेब, अभी थोड़ी सी पहले मैंने डार्क वेब, क्योंकि आज उस टॉपिक था नहीं, मैंने थोड़ा सा आपको एक जिक्र किया था एक जगह पे, ओनियन प्लेटफॉर्म, ये ओनियन वेब। तो जो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो इंटरनेट वर्ल्ड है कि जो ओनियन होता है, सेम ओनियन, आप एक परत हटाते हैं दूसरा आता है, दूसरा हटाते हैं तीसरा आता है, वो इनलेस है। जो इनलेस में जाके काम हो रहा है वह क्या है? डार्क वेब है। Harsh Pandey wants to know those people who are unable to have paid antivirus, so how they can secure their cell phones from virus or hackers? इसमें देखिए क्या होता है कि आज के डेट में देखिए आर्थिक युग है, तो हर कोई चाहता है कि अर्न करने के लिए। फिर भी जो बहुत सारी कंपनियां हैं आपको ट्रायल वर्जन के रूप में देती हैं, 1 मंथ ट्रायल देती हैं, आप उसको यूज कर लीजिए। और एक नॉमिनल कॉस्ट है, जैसे मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल के लिए जो अच्छी कंपनी है, ज्यादातर उनका जो फीस होता है नॉमिनल रहता है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ये इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे आपका 1 मंथ रिचार्ज के बराबर से भी कम है आज के डेट में। अगर आप चाहें कि अपने मोबाइल सिक्योर करना चाहें तो आपका जो 1 मंथ का डेटा के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं उससे कम में भी एंटीवायरस का फैसिलिटी उठा सकते हैं आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे भी। Okay, then the next question is it safe to use our email ID to sign up for online classes? How secure it is? देखिए जो कोई ऑन प्रोवाइडिंग आवर ईमेल, देखिए ईमेल आईडी आप 2 तरह से यूज करिए। देखिए अगर आप हो सके तो जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ईमेल आईडी जो यूज करते हैं, एज आपको इंफॉर्मेशन लेना है तो एक एबीसी ईमेल आईडी बनाइए, और बैंकिंग और फाइनेंशियल काम के लिए दूसरा ईमेल आईडी बनाइए। और आप एक दोनों के बीच में एक बैरियर बना दीजिए। नॉर्मली जैसे बहुत सारे सर्वे होते हैं या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है या बहुत सारे मार्केट में, आप सुपर मार्केट में जाते हैं, वहां पे जो भी ईमेल आईडी मांगे उस पे उसके लिए एबीसीडी दे दीजिए। और जो आपका जो बैंकिंग या इस तरह से जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वहां के लिए XYZ ईमेल आईडी दे दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा आपके माइंड में भी ये रहेगा कि हमको कौन सी ईमेल आईडी में यूज करना है। इससे आप जो सिक्योर ज्यादा हो सकते हैं। Uttam ji wants to know, is buying storage drives or USB secure if bought from online sites? देखिए ऑनलाइन साइट्स में होता क्या है कि जो ट्रस्टेड साइट है वहां पे 100% मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 90% अगर आप अपने नॉलेज रखते हैं तो मंगा सकते हैं। और जो स्टोरेज डिवाइस सिक्योर होते हैं, बेसिकली उसमें ब्रांड में जाइए, ठीक है। लेकिन अब उसमें कोई किसी जो पैकेजर्स है यानी कि जो सेलर है उसने कौन सा ब्रांड दिया है उसके ऊपर होता है। लेकिन अगर ट्रस्टेड है, सील्ड पैक है, तो आप बाइंग कर सकते हैं। मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आपका लोकल स्टोर, क्योंकि लोकल स्टोर से ज्यादा खरीदेंगे तो आप एक बार फिजिकली भी देख सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि जैसे फिजिकल टच है, अगर खराब होगी कुछ होगी तो हम तुरंत रिप्लेस करेंगे। अगर ऑनलाइन स्टोर से खरीदेंगे तो उसमें प्रोसेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। वैसे ऑनलाइन खरीदने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूंगा कि ऑफलाइन आप परचेज ज्यादा करें तो वो बेहतर रहेगा। Okay. Prakash ji wants to know how to adopt cyber security when using wireless devices.
हाँ, प्रकाश जी का क्वेश्चन ये है कि जैसे वायरलेस सिक्योरिटी में हम कैसे एडॉप्टिंग करें, उसके लिए क्या होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, बेसिकली ये क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन यार जहाँ से हम इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे जो सर्वर होता है, जो सर्वर होते हैं वहाँ के लिए भी एक एंटीवायरस आते हैं, ठीक है, जो सर्वर बेस होते हैं, जो एंटीवायरस होता है, इनको वहाँ पे सर्वर में इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे हम सिस्टम के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह जो सर्वर होते हैं, सर्वर सिस्टम है, वहां पे भी एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाता है। उसके थ्रू फिल्ट्रेशन होती है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को हमको पास आउट होने देना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करना है। Okay. Himanshu wants to know what is the most dangerous social media app? मोस्ट डेंजरस सोशल मीडिया, देखिए इसमें Yes. अगर आप सिक्योरिटी नहीं रखते हैं तो सारे जो सोशल ऐप हैं डेंजरस ही हैं, अगर आप सिक्योरिटी और प्राइवेसी ख्याल नहीं रखेंगे तो। Okay. Kshitij wants to know which are the good antivirus for Android. देखिए अगर मैं उनको बोलिए पर्सनली करें, ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी को रिकमेंडेड करता हूं तो इस प्लेटफॉर्म में थोड़ा सही नहीं होगा। मैं पर्सनली, आप लोग क्वेश्चन रखिए तो हम पर्सनली उनको जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम किसी ब्रांड का इस तरह नाम थोड़ा अनफेयर होगा, तो हम उनको पर्सनली उनसे कांटेक्ट करें तो हम उनको सजेस्ट करेंगे उनका यूज क्या है। Shubham Sharma is writing, my mobile is Redmi. It is Chinese mobile. So what can I do? It is also had its antivirus. Is this harmful for my information? अगर आज के डेट में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ठीक है कि हम स्वदेशी होना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि आपने अभी न्यूज में सुना होगा कि जो वर्ल्ड में 90% रेयर जो एलिमेंट्स है फाइंड आउट करता है दूसरी कंट्री, और वर्ल्ड में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चाहे आप एप्पल प्रोडक्ट्स उठाइए चाहे अदर प्रोडक्ट उठाइए, 80% प्रोडक्ट्स एक सिंगल कंट्री है जो बनाती है। और अगर उसी में भी हम स्वदेशी की बात करते हैं, बहुत सारे स्वदेशी जो मोबाइल्स कंपनियां हैं उनकी जो इंटरनल पार्ट्स हैं इवन वहीं से इम्पोर्ट हो रहे हैं। जो चाइनीज मोबाइल का आप इश्यू कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो एंटीवायरस है, देखिए सबसे बढ़िया है कि एंटीवायरस रखिए, वो बेहतर है। और बाकी तो आज के डेट में ग्लोबली है कि हम अगर इंटरनेट ने ग्लोबली बनाए हैं कि हम इंसानों ने वर्ल्ड को बनाया है, लेकिन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड नहीं जानता है। इसी तरह जैसे आपका कोरोना वर्ल्ड को, पब्लिक को नहीं जाना, इंसानों को नहीं जानता है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, अगर ज्यादा डाउट्स है तो आप पर्सनली इनको भी बोलिए, पर्सनल कांटेक्ट करें। Sumit Krishnan wants to know if browser managed by your organization message is coming up on Google browser, is the signal of any insecure activity or hacked browser? Please answer. अगर देखिए ऑटोमेटिकली जो पॉपअप्स आ रहे हैं या फिर आपका माउस ऑटोमेटिक चल रहा है तो पॉसिबिलिटीज है हैक हो सकता है। और रोबोटिक्स, अभी आप लोग एक चीज और मैं थोड़ा छूट गया था, याद आएगा, जैसे आप लोग बहुत जगह पे क्लिक कर रहे होते हैं या कोई मैसेज सेंड कर रहे होते हैं तो आपने आपको ह्यूमन होने का प्रूफ करना होता है कि ऐसा, क्योंकि आज के डेट में रोबोटिक्स का जमाना भी आ गया है, तो बहुत जगह पे रोबोट कंप्यूटर को चला रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि रोबोट ही आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटीज है। Shubham Sharma wants to know the Google Drive is secure for information or not? देखिए शुभम शर्मा जी, जो गूगल ड्राइव है, देखिए कोई भी चीज आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि 100% सिक्योर तो कोई नहीं है, लेकिन 99.99% सिक्योर मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि 100% सिक्योर आज तक सिस्टम में कोई भी कर नहीं पाया है, ठीक है। फिर भी हम जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग को जो जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रोवाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो इसी तरह जो गूगल है हमको वर्चुअल रूप में जो डॉक्यूमेंट्स रखने की सुविधा दे रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यही है कि फिर भी अपना सुरक्षा अपने हाथ में। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिजी लॉकर है, क्योंकि हमें ज्यादा अभी सरकार इतना स्टोरेज हम लोगों को दे नहीं पा रहा है, तो हमारी मजबूरी है गूगल ड्राइव यूज करना। अभी बस अब हम लोग इंडिया में डिजी लॉकर ही यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, तो 99.99% सिक्योर है, बाकी आप समझदार हैं। Great. Thank you so much, sir, for answering all the questions so nicely. We are done with all the queries. I think all the doubts of the audiences might have definitely cleared. Now, I would like to invite Mr. Arpan Gupta of SkyEdge Fitnet Club for delivering a vote of thanks speech. भरत सर, अगर आप हमारे साथ हैं तो सोना शेखर तिवारी जी एक चलते चलते एक सवाल उन्होंने पूछा था जो कि शायद रह गया है,
तो मैं ये चाहूंगा कि इससे हमारा मीटिंग खत्म होने का अभी 2 मिनट आखिरी बकाया है, तो आप चलते चलते उनका एक सवाल ले लें। शायद उन्होंने ये पूछा है कि जूम ऐप से रिलेटेड सेफ्टी के कंसर्न्स जो थे उनके, वो अनआंसर्ड रह गया है। तो शंकर तिवारी जी का जो है इस जवाब के साथ हम इस सेशन को अंत करना चाहेंगे। भरत जी, अगर आप मौजूद है तो कृपया जूम ऐप की सेफ्टी से रिलेटेड हम सभी के कंसर्न्स को आप रिजॉल्व कर दें, क्योंकि काफी पॉपुलर सवाल है ये इस समय का, इसलिए मैंने विशेष रूप से सवाल किया है चलते चलते। भरत सर। हेलो, ठीक है। देखिए, जूम ऐप जो है अभी क्या हुआ था कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट या बहुत सारे यूएसए गवर्नमेंट है, उन्होंने उसमें थ्रेट्स पाए गए थे कि उसमें वल्नरेबिलिटीज थी। तो जो जूम ऐप पे जो डेटा है, सिक्योरिटी है, वो सिक्योर नहीं है। इसकी वजह से उसको डिनाई करते गए, और इसके बाद इसकी वजह से गूगल ऑडियो हो गया या फिर आपके माइक्रोसॉफ्ट 360 प्लेटफॉर्म है, उनको ज्यादा यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये चाइना में डेवलप किया गया था, तो उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, वल्नरेबिलिटीज थे। तो बेसिक वहां पे ये जो आपकी डेटा प्राइवेसी बहुत वीक थी। तो ये बहुत सही सवाल है कि जूम एप्स, तो इसलिए अभी जूम एप्स थोड़ा सा सिनेरियो से भी बाहर हुआ है, लेकिन खैर कंपनी को ने बहुत फायदा उठाया है ये लॉकडाउन का। लेकिन जूम ऐप में जो कंसर्न्स है सिक्योरिटी का बिल्कुल है कि जो जूम ऐप है उतना सिक्योर नहीं है। अभी इसी में शेयर करना चाहूंगा, जैसे आपका टिकटॉक वीडियो है, टिकटॉक वीडियो में क्योंकि जो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है या आपका डेटा है, आपकी मूव है, उन लोग एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी। मैं क्षमा चाहूंगा कि जो है मैंने आपको बीच में रोक करके सवाल लिया। अब मैं चाहता हूं कि अर्पण जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और वोट ऑफ थैंक्स को कंप्लीट करें। धन्यवाद मितांशु जी, हमें बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए। मैं अर्पण गुप्ता, स्काई फाउंडेशन का कोऑर्डिनेटर, धन्यवाद करता हूं भरत जी को कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें प्रदान किया। बहुत अच्छे तरीके से हमें भरत जी ने इस रोचक और प्रसिद्ध विषय से हमें अवगत कराया, साथ ही साथ हमें जागरूक किया कैसे हम साइबर फ्रॉड से बचें, जो कि इस दौर में कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए उनका धन्यवाद। और सर्वप्रथम अपने स्काई टीम का धन्यवाद करता हूं, और इसके कोऑर्डिनेटर क्लब स्काई एक्ट WLS यूनाइटेड माइंड्स को धन्यवाद करता हूं, और पुनः अपने स्पीकर भरत जी को धन्यवाद करता हूं, और अपनी ऑडियंस को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने श्रद्धा पूर्वक इस सेशन को सुना और अपनी दिलचस्पी दिखाई। और मैं खास धन्यवाद देना चाहूंगा श्वेता जी और सुभान जी को। और कृपया जो हमारा दूसरा सेशन है शाम 7 बजे, उसमें अपनी बहुमूल्य उपस्थिति प्रदान करें, और हमारे पेज को यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर आदि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, ताकि आपको अन्य जानकारी मिलती रहे। और इस सब की लिंक नीचे डाल दी जाएगी, कृपया करके उस पर विजिट करें। और हमारे इस सेशन का सर्टिफिकेट पाने के लिए नीचे दिए गए फीडबैक फॉर्म को जल्द से जल्द भरें, क्योंकि 12 बजे के बाद एक्सपायर हो जाएगा। हैप्पी नाइट स्काई वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद। यहाँ मैं अर्पण गुप्ता अपनी वारी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी। और मैं सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने लास्ट में एक पोस्ट किया है, आप सभी लोग उसको देख सकते हैं कि यदि आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो कृपया admin@skyfoundation.org पर अपनी क्वेरीज को पोस्ट करें, और हमारे एडमिन के द्वारा उन क्वेरीज को हमारे आज के एक्सपर्ट भरत जी को फॉरवर्ड किया जाएगा। उनके द्वारा आपको व्यक्तिगत तौर पर जानकारी मिलेगी, और एडमिन के ही थ्रू जो है आप हमारे भरत जी, जो कि हमारे आज के वक्ता हैं, उनकी व्यक्तिगत जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं यदि आपको उनको व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करना हो। और साथ ही में एक अंतिम मैसेज मैंने डाला है, जो कि आज शाम का प्रोग्राम है। जैसे मैंने कहा था कि ये भरत स्पेशल संडे है, तो भरत का भारत है, तो भारतवर्ष के सभी नागरिकों को मैं इन्वाइट करता हूँ, और संसार के सभी नागरिकों को मैं इन्वाइट करता हूँ। शाम की 7 बजे की मीटिंग डॉक्टर भरत अरूण, आकाशगंगा सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी के डायरेक्टर की जानिब से होगी, जिसमें कि आप सुन पाएंगे टाइमलाइन ऑफ सोलर इक्लिप्स, समय के झरोकों से सोलर इक्लिप्स, क्योंकि डॉक्टर भरत अरूण शायद ऐसे वाहिद अकेले व्यक्तित्व हैं जो कि पिछले 45 वर्षों का एक्सपीरियंस लेकर हम सभी के बीच मौजूद है सोलर इक्लिप्सेस का। तो जो मीटिंग कोड है वो प्लेटफॉर्म गूगल का ही रहेगा, उस कोड को डालिए, और शाम को 7 बजे हमारी पूरी टीम आपके स्वागत में करबद्ध खड़ी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। ज्वाइन करने के लिए विशेष रूप से हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट डॉक्टर कृष्णानंद सिन्हा, रविशंकर सिद्धलिंगप्पा जी, SN सुकुमार सर और विजय राघवन सर, एवं अन्य सभी गेस्ट जिन्होंने अपना पूर्ण रूपेण समय हमको दिया। और साथ ही साथ एक विशेष छोटी गेस्ट हमारी अभिजीता शुक्ला जी, जो कि इस एक्सपर्ट है, उनका भी मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा समाप्ति, सभा विसर्जन की घोषणा करता हूँ। I take your leave on behalf of Sky Foundation on this all digital platform. See you again today itself at 7 p.m. in the evening. Good day. Enjoy the day.